Okay, in electronics devices and circuit for bar we are having, so there is a basically, theory of band theory, right? Okay, we talk about conduction band, valency band. Why we are more interested in talking about band theory rather than the discrete energy level? Uh, when we talk about the band theory, Hmm. we include the conduction, the energy band diagrams of the atoms or the No, no. semiconductor. My question is again, see, we could have talked about energy level, this energy level, this energy level, this energy level. Why we talk about the band theory? Why we are carrying out our discussion in terms of the conduction band, valency band, forward energy gap? My question is that basically. Because it represents the energies of the uh, carriers of the semiconductor, Okay, which how you define basically the how you define the energy band? energy band is the uh, energy acquired by the carriers in the semiconductor at a particular temperature or a particular level. No, no. My question is, what is energy band? Let us suppose somebody come and say this is the energy band. What is the definition of this energy band? Mm, mm. What is the density of energy states? Density of the energy states is the concentration of energy at a particular energy level is called as density of energy states. Concentration of energy. So how it become then density? If you're saying concentration, then how it can become density? I'm not still convinced with this. Energy states are the levels of energy at a particular temperature which a carrier acquires in a semiconductor. Uh, Okay, fine, fine, not an or issue. So there is an yeah, equation of continuity. Have you heard about that continuity equation? yes, I have heard. What does it indicate and how you define this? Can you write this equation mathematically? Yes, the Please continuity go ahead. states that the amount of carriers incoming into a semiconductor device is equal to the amount of carriers leaving the semiconductor device. So can you come again? The continuity equation is all about the amount of carriers entering a particular volume of semiconductor is equal to the amount of carriers leaving the semiconductor device. So that's it. Any other? Um, that is the continuity equation basic, like what is meant by that. देखो मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ. Okay. एक मेरे पास तालाब जानते हो ना. गांव में देखा होगा तुमने एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, राइट. Yes. हम Yes. एक तालाब बना देते हैं. Okay. अब उस तालाब में हम क्या करते हैं, एक इनलेट बना लेते हैं, एक आउटलेट बना लेते हैं, राइट. Yes, sir. ठीक है, राइट. ओके. Yes, अब sir. हम मान लेते हैं कि एक इनलेट है, एक आउटलेट है. ये तो हो गया आपका इनपुट एंड आउटपुट. एक हो गया रेन वाटर, मौसम खराब हो गया तो एक वहां से भी पानी आ गया, राइट. एक हो Yes, गया sir. इवेपोरेशन, सनलाइट्स होंगी तो इवेपोरेशन भी होगा. ये चार चीजें आ Yes, रही है. sir. तो यार अगर मैं Yes. उस पॉट में जो भी मैंने वो एरिया कंसिडर किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल विद टाइम देखूंगा, तो इन चारों के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताओ. और कैसे Yes, डिपेंड sir. करेगा? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो प्लस रेन वाटर माइनस इवेपोरेशन, यही होगा कि नहीं होगा, बताओ. ठीक है. Yes, sir. तो इसका मतलब Yes. यार इसी सेमीकंडक्टर में भी तो ऐसे फेनोमेना होते हैं, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन. Generation and तो ये सारे reproduction. फैक्टर आपको क्या लेने पड़ेंगे, Yes, sir. कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे. बहुत सिंपल सी बात है, Right. क्या मुश्किल बात है इसमें, बताओ यार. देखो, Yes, sir. आपको कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है ना यार, क्या मैथमेटिकली क्या, लीव दैट फॉर अ मोमेंट. ओके, लॉजिकली सोचो, सिंपल सा Okay. लॉजिक. Right. अब आपको मैंने बोला एनर्जी बैंड. एनर्जी बैंड क्या होता है? कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी. कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी वेयर इलेक्ट्रॉन कैन लाई.
एट एनी स्टेट। वो एनर्जी बैंड हो गया कि नहीं हो गया बताओ। राइट, ओके। अब आपने देखा होगा एनर्जी बैंड की हम बात इसलिए करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो क्या बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम क्वांटम स्टेट्स। तो जब आप एक क्रिस्टल के अंदर लैक्स क्रोर्स ऑफ एटम डालना स्टार्ट करोगे पर यूनिट वॉल्यूम्स, तो वहां पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह पे लाई करना स्टार्ट करेंगे वो नहीं लाई कर सकते, वो क्या करेंगे, स्प्लिट करना स्टार्ट करेंगे, इसमें स्प्लिट करेंगे। करेंगे, हाँ तो ऐसे स्प्लिट स्प्लिटिंग करेंगे। होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या मिलेंगे आपको, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जीज मिलेंगे इन वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेटी। तो वो ओके, आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। यस यस राइट। आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इफ यू रिमेम्बर राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट, पहला क्वेश्चन था यस सर, शायद। तो डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ऑफ, स्टेट्स क्या होता है बताओ। हाँ द डेंसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेट्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है नंबर ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गई बात, राइट। ओके ओके, यस सर। क्लियर है। once you know the density of states and you know the probability of occupancy of those energy states, you can calculate the concentration of electron and hole in that. Agreed or not? यस सर, राइट राइट, या। Okay. Okay, can you do one thing? एक डायोड है मेरे पास, एक केस में वो फॉरवर्ड बाइस है, एक केस में वो रिवर्स बाइस है, राइट। आई एम रिपीटिंग। एक डायोड है मेरे पास, एक केस में वो फॉरवर्ड बाइस है, एक केस में वो रिवर्स बाइस है, ओके। तो क्या चार्ज यस प्रोफाइल बना सकती है उसके जंक्शन के अराउंड, क्या चार्ज प्रोफाइल होती है, यस सर। बनाइए। बन गया। सर फॉरवर्ड बायस के लिए बन गया, रिवर्स बायस के लिए कर रहा हूँ। सर दिस इज फॉर द फॉरवर्ड बायस। हम्म। ये तो आपने चार्ज डेंसिटी बनाई है ना, मतलब मैं एक्चुअल सर डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बनाए हैं। हाँ 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 वो बनाइए। सर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बनाए हैं। मैं सिंपल कह रहा हूँ, चार्ज प्रोफाइल क्या होगा, ये तो आपने डिप्लेशन लेयर की बनाई है। डिप्लेशन लेयर के बाहर भी तो होगा ना, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एन रीजन में पी रीजन में, नहीं समझे बात मेरा, राइट। ये तो जो आपने बनाया तो आपने डिप्लेशन लेयर का बनाया, एग्रीड और नॉट, राइट। बट जो यस आपका बट न्यूट्रल न्यूट्रल रीजन है, पी रीजन है, एन साइड है, तो वहां पे भी तो चार्ज कैरियर फ्लो होगा ना, करंट कैसे फ्लो होगा वो बताओ मेरे को बेसिकली। ओके ओके। When we apply the forward bias, uh, the charge carriers from the N region will cross the junction and it will be attracted towards the battery, a positive terminal देखो of the battery. So फॉरवर्ड that वाइस में क्या होता है बताओ, एक्सट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है। drift होगा, फॉरवर्ड वाइस में क्या होता electromagnetic. है, इंजेक्शन होता है कि नहीं होता है, आप चार्ज एक साइड से लेके दूसरी साइड रखते हो कि नहीं रखते हो। Yes sir, तो it वहां पे will. आपको क्या मिलेगा, देखो जंक्शन के अराउंड ऐसे एक्सेस स्टोर चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, राइट। हाँ, रिवर्स में इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। आप निकाल के जो थोड़ा repulsion बहुत होगा. होता है भी उसको निकाल के दूसरी साइड ले आते हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलती है, ऐसी मिलती है चार्ज क्रेडिट की नहीं मिलती है बताइए। समझ आ गई बात। तो जो आपका ये वाला Yeah, प्रोफाइल होता है, यहाँ से ये आने के लिए आपको क्या लगता है, टाइम लगता है कि नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो मैं हाँ, पूछ रहा था आपसे, ओके। राइट, okay, reverse recovery time. क्लियर। Okay sir, I got it. अच्छा, एक पॉइजन इक्वेशंस होती है, उसका क्या यूज होता है, पॉइजन इक्वेशन का क्या यूज होता है डायोड थ्योरी में। Poisson's equation is used to find the electric field profile of a क्या होती है semiconductor. पॉइजन इक्वेशन, होती है क्या बताओ मेरे को कॉपी पे लिख के, क्या होती है पॉइजन इक्वेशन। Del square V is equal to rho V minus rho V. डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू Uh, Del square V is equal to minus rho V. रो वी अपॉन एप्सिलॉन, राइट। Rho V upon epsilon. व्हाट इज रो वी हियर। It is volumetric charge density. तो ये कैसे आपको हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। So the electric
electric field is equal to minus del dot V, which is the equation for the electric field. So from here, when we substitute this minus del dot V in the Poisson's equation, we will get electric field is equal to integral of minus rho V upon epsilon. So in that manner, we'll get the electric field of the कहाँ पे होती semiconductor. है, क्या शेप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है? जंग बनाओ जरा, आपने चार्ज डेंसिटी तो बनाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का Yes, क्या sir. शेप होगा? Yes, sir, बनाता हूँ. Will be triangular in shape. पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में होगी? Is equal to integral. It will be negative. E is equal to minus अगर मैं integral आपको यहाँ पे कांटेक्ट पोटेंशियल पूछूं, उसका वैल्यू कैसे निकालोगे फिर? contact potential. हम्म, Contact potential we can differentiate the electric field. डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड, Mm. डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेट द इलेक्ट्रिक फील्ड? We will differentiate the electric field because E is equal to minus del dot V. So for getting the potential, we have to फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा? integrate होगा. Sorry. तो फिर कैसे निकालोगे? निकालो, मेरे को कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बताओ, कैसे निकालोगे जो आपने ग्राफ बनाया? एक मिनट. यार सिंपल सा बात है जिग्नेश, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा ट्राइंगल का, सिंपल लॉजिक, हाँ. सिंपल बताइए। हैं? हटा दीजिए कॉपी को हटा दीजिए। एम आई ऑडिबल? हेलो? हाँ. हाँ, मेरी आवाज आ रही है जिग्नेश आपको? हेलो जिग्नेश, याद मेरी आवाज आ रही है क्या? फिर कर्व ऐसा आएगा. हाँ जी, हेलो. हाँ, आवाज आ रही है मेरी यस सर, आपको? आ रही है. यस सर, आ रही. यस सर. यस हम्म सर, आ रही. हम्म। तो बताइए, क्या डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा स्ट्रेट अवे? हाँ, एरिया अंडर द कर्व आएगा डायरेक्टली. तो यार ये चीज है ना, आप ये क्वेश्चन इसलिए पूछना, इस केस में आपने मेंटल यूज नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट आप बिल्कुल मजदूरी पे चले गए। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचते, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई आई आस्क इंटेंशनली। अच्छा, डायोड का करंट इक्वेशन क्या होता है? या ID is equal to I naught exponential VD upon VT. अच्छा, ये जो आई नॉट होता है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? I naught depends on temperature हम्म um, as well as doping concentration, intrinsic intrinsic concentration, as हम्म। well as width, uh, इसको इसको diffusion हम length, स्केल इसको इसको हम स्केलिंग करंट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं स्केलिंग करंट इसको, कोई वजह? scaling current. हम्म। So I haven't heard that. क्या ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जंक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? Yes sir, depend हाँ, करता तो अगर एरिया को डबल कर दो, करंट क्या हो जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा? है. हाँ, या तो इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। स्केल कर सकते हैं. ओके. यस तो सर. जिग्नेश, थोड़ा सा बस मेंटल प्रेजेंस के ऊपर फोकस करो, यू गॉट सम नॉलेज, आई एम नॉट डिनाइंग, ओके? वेन एवर यू आर गिविंग स्नैप, बस मेंटली प्रेजेंट रहो, अपना बेस्ट तो मेंटली ओके. प्रेजेंट होते हो। रेस्ट एवरीथिंग ओके. इज गुड, नथिंग टू वरी, राइट? ओके, आपको ही पता जितने क्वेश्चन मैंने पूछे आप अच्छे से आंसर दे सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से आंसर देते थे आप, ठीक है? बट कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, थिंक लाइक दैट, ओके यू नो द थिंग्स, यू विल डू द बेस्ट, ओके? अगली बार के लिए इंप्रूव करो और इससे ज्यादा, राइट? ओके, यस सर.